Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस स्टेट के द्वारा भी रिसेंटली रैंक फर्स्ट किया गया फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन द ICGS प्लेटफॉर्म की हाईएस्ट एंट्रीज थी। राइट, तो ये कौन सी स्टेट रहेगी? उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट एंट्रीज रही। राइट, एंड इन्होंने टॉप किया है इन दिस ICJS, जो कि है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म का। राइट, और फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन्होंने यहाँ पे टॉप किया। कितनी एंट्रीज अगर रफ आइडिया देखें तो यहाँ पर यूपी की 1,56,22,514 टू बी एग्जैक्ट एंट्रीज थी। दूसरे पोजीशन पे आ जाता है मध्य प्रदेश, फिर आ जाता है बिहार। ये जो ICGS पोर्टल है ना, बेसिकली ये एक इनिशिएटिव था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ताकि जो भी आपका डाटा ट्रांसफर हो सके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो जस्टिस सिस्टम्स है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स हैं, जैसे कोर्ट, पुलिस, जेल्स, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, इनके बीच में थ्रू अ सिंगल विंडो पोर्टल ये सारा डाटा हम एक्सचेंज कर सकें। तो किसके द्वारा? ये कौन सी स्टेट ने टॉप किया? वो है यूपी ने यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर टू रशिया इन दिसंबर। तो यहाँ पे याद रखेंगे कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बाकी बी और सी आपके ठीक रहेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इन्होंने जब विजिट किया, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ द कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कर्नाटका। तो नहीं, इन्होंने किया था फॉर कुंडकुलम। राइट, पावर फॉर द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन ठीक रहेगा कि इंडिया और रशिया ने एक 4 साल का एग्रीमेंट साइन किया टू मेक प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एनर्जी ट्रेड, कनेक्टिविटी, मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। एंड यूनियन मिनिस्टर्स के बीच में MOU साइन हुआ ऑन कॉर्पोरेशन ऑफ फार्माक्यूटिकल एंड हेल्थ सेक्टर ऑल्सो। तो ये भी ठीक। ये किसके अंडर हुआ? क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया जो हेल्थ प्रोडक्ट्स है, मेडिकल प्रोडक्ट्स है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, उसको इम्पोर्ट ना कराकर हम उसको अपने ही देश में बनाएं और एक्सपोर्ट करें। Next, which of the following points are correct with respect to the report on trends and progress of banking in India 2022-23 released by RBI? तो इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो ऑप्शन बी एंड सी ऑप्शन ठीक रहेगा। बी कह रहा है कि RBI ने रिवील किया ग्रीवियंसेस रिलेटेड टू लोन्स एंड एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली टू 60 एंड 70% रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही। सी कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ATMs मशीन जो इंक्रीज की गई फिस्कल ईयर 2022 में वो 3.5% से इंक्रीज की गई। बिल्कुल सही। ए ऑप्शन कह रहा है कि जो MD एंड CEOs हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की, उनकी जो सैलरीज थी 28.4 टाइम्स है द एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय।
तो नहीं, उनकी जो सैलरी थी वो एक्चुअल सैलरी कितनी थी, 58.1 टाइम्स दी सैलरी ऑफ एन नॉर्मल एम्प्लॉय। अब ऑप्शन ए आपका ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई ने एक्सटेंड किया डेडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग पीनल चार्जेस इन लोन अकाउंट्स टू 1 अप्रैल 2024। पहले 1 थी इसकी डेडलाइन, अब उसको एक्सटेंड करके कितनी कर दी गई है, 1 अप्रैल 2024। फिर इसी के साथ साथ एक $2 बिलियन का फूड पार्क्स इंडिया में सेटअप करने की बात की गई। इसके लिए नॉट 2 बिलियन का फूड पार्क बल्कि 2 बिलियन अमाउंट अलोकेट किया गया ताकि फूड पार्क्स को इंडिया में सेटअप किया जाए। और ये किसके द्वारा अलोकेट किया गया, यूएई के द्वारा ये अमाउंट अलोकेट किया गया। देन इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म, इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म ये कहाँ पर है, स्टार्ट किया गया गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर, द्वारका में। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड इंस्पायर प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। इंस्पायर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। पूछा जा रहा है कि उस बैंक का नाम बताओ जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो वो है बंधन बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इंस्पायर प्रोग्राम। 60+ ईयर्स के लिए, 60+ एज के इंडिविजुअल्स के लिए होगा ये। मंथली एवरेज बैलेंस यहाँ पे 2 अकाउंट का होगा, 1 लाख रुपए का तो होगा आपका प्रीमियम सेविंग अकाउंट, और अगर 25,000 रुपये है तो वो आपका एडवांटेज सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट, एज पर द हाफ ईयरली इकोनॉमिक रिव्यू 2023-24 नवंबर 2023 रिलीज्ड बाय डीईए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे बताया गया कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ हाउ मच परसेंट इन फिस्कल ईयर 2024। तो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है 6.5% की। ये डाटा आप देखेंगे 6 से 7% के बीच में वेरी करता रहेगा, राइट। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डाटा पब्लिश करेगी, ऊपर भी कर सकती है, नीचे भी कर देती है। फिर यहीं पे आप देखेंगे जो फर्स्ट हाफ था 2023 का, हमने वहाँ पर 7.6% से यहाँ पे ऑन एन एवरेज हमने ग्रो किया, और 7.7% से हमने यहाँ पे ऑन एन एवरेज ग्रो किया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 24, जो कि 23-24 का डाटा है। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉर्वेनियन ग्रैंड मास्टर एंड वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर चेस मास्टर और वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन। इन्होंने अभी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है। फॉर विच टाइम, तो इन्होंने 5वीं बार यहाँ पे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया इन मेंस कैटेगरी। वहीं पे रशिया की चेस प्लेयर एनास्तीसिया बोदनारुक, इन्होंने 5 वर्ल्ड वीमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है, करेक्ट। और इन्होंने इंडिया की कोनेरू हम्पी, जो कि इंडिया की चेस ग्रैंड मास्टर हैं, उनको हराया टू विन दिस टाइटल ऑफ वीमेंस कैटेगरी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है ऑप्शन फर्स्ट, करेक्ट। नेक्स्ट है, हु हैज अज्यूम द चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक ऑन 1 जनवरी 2024। तो अशोक वासवानी, राइट, इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक ऑन 1 जनवरी। ये किनको रिप्लेस करेंगे, दीपक गुप्ता को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू एमडी एंड सीईओ, राइट। फिर इसी के साथ साथ इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पे खुल रहा है, ये वृंदावन में खुल रहा है इन यूपी, ठीक। फिर इसी के साथ साथ 12th एडिशन ऑफ दिव्या काला मेला कहाँ पर होगा, सूरत में होगा, करेक्ट। फिर IREDA ने 2024 को डिक्लेयर किया एज द ईयर ऑफ HR डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट, 2023 इन दिसंबर 2023 Canara Bank gave in principle approval to initiate the process of listing its mutual fund subsidiary Canara Robeco Asset Management Company through an IPO of shares. Here Canara Robeco AMC will be the dash listed AMC in India. तो ये 5वीं लिस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहेगी इन इंडिया। तो राइट ऑप्शन 2। नेक्स्ट, इन जनवरी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एक्सटेंडेड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स बाय हाउ मेनी ईयर्स। तो 1 साल के लिए यहाँ पे स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। एंड इसी के अंदर याद रखेंगे, अगर कंपनी जो भी अपने डिटरमाइंड सेल्स का टारगेट है, थ्रेशोल्ड है, उसको अचीव नहीं कर पाती है एक साल में, तो उनको यहाँ पे जो इंसेंटिव है उस साल का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, DRDO, इन्होंने अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया ऑन 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को हम रेजिंग डे या बोले तो 66th रेजिंग डे या फिर 66th फाउंडेशन डे ऑफ DRDO हमने ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए ग्लोबल ड्रोन हब किस स्टेट को बनाया जा रहा है इंडिया में, तो महाराष्ट्र को ग्लोबल ड्रोन हब की तरह देखा जा रहा है। नेक्स्ट,
किस स्टेट ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया किस स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया एज द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया? तो गुजरात इंडिया की पेट्रो कैपिटल बनी है, याद रखेंगे। देन आर्सेलो मित्तल, इन्होंने अभी किस आईआईटी के साथ टाई अप किया टू क्रिएट अ हाइपरलूप फैसिलिटी? हाइपरलूप फैसिलिटी डेवलप की गई आर्सेलो मित्तल ने, इन्होंने आईआईटी मद्रास के साथ यहाँ पे टाई अप किया ताकि एक हाइपरलूप फैसिलिटी को डेवलप किया जा सके। देन के स्मार्ट टेक सॉल्यूशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस स्टेट के द्वारा? तो केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है के स्मार्ट टेक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने या किस बैंक ने भी रिसेंटली लॉन्च किया एक स्पेशल 175 डेज की फिक्स डिपॉजिट विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%? तो 7.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एफडी पर, 175 डेज की एफडी रहेगी। पूछा जा रहा है कि किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया ये सुपर स्पेशल 175 डेज फिक्स डिपॉजिट? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, who has recently been appointed as the chairman of the 16th Finance Commission constituted by the government of India? तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली अरविंद पनागरिया, राइट, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट अभी की गई है। नेक्स्ट है इन जनवरी फेलिक्स एंटोनी, इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म। तो फेलिक्स एंटोनी, इनको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का यहाँ पे सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो फर्स्ट वीमेन एंड एट्थ प्रेसिडेंट, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट एंड एट्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक कौन बनी है? वो रहेंगी नादिया कैल्विनो, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं, राइट, एंड ये पहली वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड एट्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक बनी। करेक्ट। नेक्स्ट, नॉर्वेनियन ग्रैंड मास्टर एंड वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन, इन्होंने अपना 7वां वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप को जीता अभी रिसेंटली। एंड यहीं पे अगर वीमेंस कैटेगरी की बात करें तो रशियन ग्रैंड मास्टर वैलेंटीना गुनिना, इन्होंने अपना सेकेंड टाइम यहाँ पे वीमेन ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल को जीता। तो 7 टाइम फॉर मैग्नस कार्लसन एंड सेकेंड टाइम फॉर वैलेंटीना गुनिना। और यहीं पे याद रखेंगे मैग्नस कार्लसन का ये 17वां वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल रहेगा। मूविंग ऑन, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू स्टार्टअप ऑपडोर टू प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशंस टू ई कॉमर्स फॉर्म। ये ऑपडोर क्या है? बेसिकली एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा टू ई कॉमर्स वेरियस फॉर्म्स। इसको लॉन्च किया गया बाय फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल जी के द्वारा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन 5। फिर अयोध्या एयरपोर्ट का रीनेमिंग करके क्या कर दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अभी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फॉर सिंगिंग इन द मोस्ट लैंग्वेजेस एट अ कंसर्ट इन दुबई। किनके द्वारा? सुचेता सतीश के द्वारा, राइट। फिर इसी के साथ साथ अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की मेंबरशिप को लेने से मना कर दिया है। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इस बार 2024 में किसके पास रहेगी? रशिया के पास। नेक्स्ट, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने लॉन्च किया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन इंपोर्ट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस एंड टेस्टिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। फिर यहीं पे द साइट इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इन्वेस्ट इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड थ्रू डैश कंपनी फॉर CDSCO। तो किस कंपनी ने? TCS ने, राइट। नेक्स्ट आ जाता है किस कंट्री ने अलॉन्ग विद इंडिया इन्होंने कमेंस किया फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। पहला एडिशन था, इनॉग्रल एडिशन कह सकते हैं। कहाँ पर हुआ? राजस्थान में। लोकेशन इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ये डेजर्ट साइक्लोन है किसके बीच में? इंडिया एंड UAE के बीच में। इन्हीं के बीच में याद रखेंगे एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज भी कंडक्ट की जाती है जिसका नाम रहता है क्या? राइट, हम बात कर रहे हैं एयर एक्सरसाइज की, उसका नाम है डेजर्ट ईगल। ये है डेजर्ट साइक्लोन। तो राइट ऑप्शन UAE। नेक्स्ट, इन जनवरी डैश बिकेम द फर्स्ट ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो वो रहेगी जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग मिली, तो बेसिक ट्रेनिंग,
राइट। 15 दिन की ट्रेनिंग मिली तो एडवांस ट्रेनिंग, एंड यहाँ पर हर ट्रेनिंग को हर दिन 500 रुपये का स्टाइफंड दिया जाएगा, एंड ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 15,000 रुपये का यहाँ पे टूल किट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और यहाँ पर हम 30 से भी ज़्यादा ट्रेनिज को यहाँ पे लोगों को ट्रेन करेंगे अंडर दिस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंडर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट ज्वाइन ब्रिक्स न्यू मेंबर। तो अभी हमने देखा था जनवरी 2023-24 में अर्जेंटीना ने ब्रिक्स का मेंबर बनने से मना कर दिया। नेक्स्ट, in January, RBI issued the revised guidelines for classifying accounts and deposits as inoperative accounts and unclaimed deposits by bank which come into effect from dash to from 1st of April 2024। मतलब जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, जिस बैंक अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो यहाँ पे बैंक्स को बोला है कि उन अकाउंट्स के ऑपरेटर्स को, ओनर्स को कांटेक्ट किया जाए एंड उनको बताया जाए कि आपके यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, एंड कोई भी अगर फंड है तो वो उनको निकाल सकते हैं। एंड काफ़ी टाइम से अगर वहाँ पे वो फंड ऐसे ही बैठा हुआ है, कोई उसका यूज़ नहीं कर रहा, उस बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो उसके ऑनर्स को यहाँ पे आगाह किया जाएगा, उनको बताया जाएगा अबाउट दिस। राइट, तो राइट ऑप्शन 1st of April। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिवाइज किया बल्क डिपॉजिट लिमिट फॉर द शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन टायर 3 एंड टायर 4 टू 1 करोड़ एंड अबव फ्रॉम 15 लाख एंड अबव। 15 लाख से बढ़ाकर जो लिमिट है उसको 1 करोड़ कर दी गई है। राइट, और ये 6.66 टाइम इंक्रीज हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट, राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द प्यूबिटी स्पोर्ट्स मैन एथलीट ऑफ द ईयर 2023। तो वो रहेंगे विराट कोहली। मैन एथलीट ऑफ द ईयर प्यूबिटी के कौन है? विराट कोहली। वहीं पे अगर मैं बात करूं वीमेन कैटेगरी में, यहाँ पे या फीमेल प्यूबिटी स्पोर्ट्स फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 कौन रहेंगी? वो रहेंगी स्पेनिश फुटबॉलर आइताना बॉनमाती। राइट, ये एक स्पेनिश फुटबॉलर है। यहीं पे अगर मैं बात करूं एथलीट ऑफ द ईयर 2023 फॉर्ब्स के कौन रहेंगे? लायनल मेसी। सीईओ ऑफ द ईयर 2023 कौन रहेंगे फॉर्ब्स के हिसाब से? सैम ऑल्टमैन। और सैम ऑल्टमैन की तो अभी रिसेंटली एंगेजमेंट भी हुई है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिसेंटली रिसीव्ड द प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग ऑफ GVK पावर लिमिटेड फ्रॉम द CCI। तो अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पे 100% स्टेक एक्वायर करेगी इन GVK पावर लिमिटेड। और ये कितने में एक्वायर करेगी? 1080 करोड़ रुपए में। राइट, नहीं इसको, हाँ बिल्कुल सही, 1080। नेक्स्ट, जनवरी 2024 की बात करें तो एक 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया था इशिकावा प्रीफेक्चर को, किस कंट्री में? तो जापान में। अगर आपको याद हो पिछले ही हफ्ते की बात है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक अर्थक्वेक आया था और वहाँ के उसके बाद फ्लड की वार्निंग भी जारी कर दी थी। राइट, तो जापान में ये अभी अर्थक्वेक आया था 7.5 मैग्नीट्यूड का। नेक्स्ट, विद सेंटर ऑफ इसरो, इन्होंने एक MOU साइन किया जैन में विद NHAI ताकि डेवलप किया जा सके एंड रिपोर्ट अ ग्रीन कवर इंडेक्स फॉर नेशनल हाईवेज इन इंडिया। तो किसके द्वारा? तो वो है इसरो का आर्म NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का आर्म, नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये आर्म रहेगा इसरो का। इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ? NHAI के साथ, ताकि डेवलप किया जा सके एक ग्रीन कवर इंडेक्स को। राइट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम्स असेंट गिवन टू द बिल्स। अगर इनकी यहाँ बात करें तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट्स प्रोडक्ट्स आदि केकरी, हैंडमेड कारपेट एंड वेंचो वुडन क्राफ्ट। ये 3 प्रोडक्ट किस स्टेट के हैं जिनको अभी रिसेंटली GI टैग मिला? तो ये 3 प्रोडक्ट रहेंगे अरुणाचल प्रदेश के, जिनको भी रिसेंटली GI टैग मिला है। नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी रिसेंटली पार्टनर किया मास्टर कार्ड के साथ टू लॉन्च मास्टर कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड डिजाइंड फॉर कॉर्पोरेट सैलरी कस्टमर्स। तो किस बैंक ने यहाँ पे टाई अप किया है मास्टर कार्ड के साथ, या कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने? वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यहाँ पे टाई अप किया। और एक थीम रहेगी यहाँ पर स्वाइप एंड सेव। राइट, और इन्होंने ये मास्टर कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंड रेज थ्रू इशूइंग बॉन्ड्स इन 3 डिफरेंट करेंसीज बाय वर्ल्ड बैंक इन जनवरी। 3 करेंसीज रहेंगी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर।
वर्ल्ड बैंक ने एक 5 साल का बॉन्ड निकाला 2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, जो मैच्योर होगा 2029 में, बिल्कुल सही। दूसरा है वर्ल्ड बैंक ने 7 साल का बॉन्ड निकाला विद 5 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रहेगा इन एसएसए मार्केट, बिल्कुल सही। तीसरा है 5 साल का बॉन्ड निकाला वर्ल्ड बैंक ने कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 1.5 बिलियन कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, करेक्ट, एंड ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इनिशिएटिव्स उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्पेसएक्स के द्वारा अभी 21 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट यूजिंग देयर फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए, राइट। और स्टारलिंक हम जानते हैं ये कॉन्स्टलेशन बना रहा है अर्थ की तरफ ताकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सके थ्रू सैटेलाइट। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? लुइस ब्रेल की। ये एक 19th सेंचुरी फ्रेंच एजुकेटर एंड इन्वेंटर थे जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट को डिस्कवर किया था फॉर ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया हमने वर्ल्ड ब्रेल डे का, तो छठा एडिशन ऑब्जर्व किया 2019 में। 4 जनवरी 2019 को हमने पहली बार ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड ब्रेल डे, और 2024 में लुइस ब्रेल के 215th बर्थ एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की लुइस ब्रेल की 2024 में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली सेटअप किया सेकेंड वर्जन ऑफ गोल्ड एटीएम टू डिस्पेंस गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, करेक्ट, एट हैदराबाद मेट्रो स्टेशन। तो हैदराबाद में एक मेट्रो स्टेशन पे दूसरा ऐसा एटीएम लाया गया जहां पर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आप निकाल सकते हैं। किस कंपनी के द्वारा ये सेटअप किया गया? गोल्ड सिक्का लिमिटेड के द्वारा इसको सेटअप किया गया। पहला जो एटीएम था वो भी हैदराबाद में ही सेटअप किया गया था। नेक्स्ट, वेटन लिरिस्ट संतोष आनंद, इनको मोहम्मद राफ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, एंड सोनू निगम को मोहम्मद राफ़ी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। पूछा जा रहा है सोनू निगम, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स? तो 2022 में सोनू निगम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, इन जनवरी एस कृष्णन, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इन्होंने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल ऑफ डैश फॉर एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अर्नेट इंडिया का यहाँ पर एक वेब पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया, इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल ऑफ अर्नेट इंडिया फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये जो अर्नेट पोर्टल है यहाँ पे हम देखेंगे एक ओपन। नेक्स्ट है एज पर द मास्टर डायरेक्शन आरबीआई डायरेक्शंस ऑफ 2023 इशूड बाय आरबीआई बैंक इन जनवरी, जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं एंड इंटरनल ऑम्बर्समेंट्स हैं, दे शुड कम्युनिकेट अ फाइनल डिसीजंस ऑफ द कस्टमर्स। अगर वो कोई कंप्लेंट डालते हैं तो 30 दिन के अंदर उनकी कंप्लेंट का यहाँ पे जवाब वापस देना पड़ेगा। ऐसा आरबीआई के द्वारा अभी मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग अ कंप्लेंट। तो उनकी 30 दिन के अंदर उनकी प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन या आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ चैड। तो रिपब्लिक ऑफ चैड के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली? सकैस मासरा। नेक्स्ट, इन जनवरी शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, किस कंपनी ने सेट किया जीसेट 20? किस कंपनी ने लॉन्च किया जीसेट 20, जो कि एक KA बैंड हाई थ्रूपुट सैटेलाइट रहेगी यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट ऑफ स्पेसएक्स ऑन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा जीसेट 20 को यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट, राइट, और सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन नेवी मरीन कमांडोज मार्कोस, इनके द्वारा अभी 21 क्रू मेंबर्स एंड 15 इंडियंस को अभी सेव किया गया था फ्रॉम इंडियन नेवल शिप चेन्नई, राइट, मार्क करके चलेंगे। अभी आपने देखा था कि एक कमांडोज का ऑपरेशन हुआ था जहां पर उन्होंने रेड सी के वहां से इंडियंस को एंड क्रू मेंबर्स को सेव किया था। तो किस नेवल शिप से सेव किया था? INS चेन्नई से इन्होंने मार्कोस, ये जो आपके कमांडोज हैं, मरीन कमांडोज हैं इंडियन नेवी के, इनके द्वारा यहाँ पर INS चेन्नई से 21 क्रू मेंबर्स एंड 15 इंडियंस को सेव किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आप जाकर 2000 रुपये के नोट्स को एक्सचेंज करा सकते हैं एज पर द RBI's गाइडलाइन? तो पोस्ट ऑफिस से एंड बैंक से आप यहाँ पर जाके अपने 2000 के नोट्स को एक्सचेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद इंडियन रेलवेज टू रिड्यूस एनर्जी एंड वाटर कंजप्शन एंड लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन? तो CII ने यहाँ पर रिसेंटली MOU साइन किया इंडियन रेलवेज के साथ ताकि वाटर कंजप्शन को, एनर्जी की रिडक्शन को, लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो, पॉल्यूशन कम हो, राइट, ग्रीन एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो, इसके लिए यहाँ पे MOU साइन किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू UN DESA,
रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट, इन्होंने रिलीज किया अनडेसा के द्वारा रिलीज किया जाता है वेस्ट, जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 की, जनवरी 2024 में। और यहाँ पे इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की, जैसे मैंने बताया, ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया की 6 से 7% के बीच में वेरी करती रहेगी। इंडिया 6.5, कोई 6.2, कोई 6.6, कोई 6.7 ऐसे प्रोजेक्ट करेगा, राइट। कभी बढ़ जाएगी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हर दूसरे तीसरे महीने अपनी प्रोजेक्शन बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, राइट। ये कोई फिक्स नहीं होती, बट स्टिल आपको एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, एसबीआई ने रेज किया डैश अमाउंट बाय इशुइंग 5-year ग्रीन बॉन्ड्स विच विल मैच्योर ऑन 29 दिसंबर 2028। तो याद रखेंगे एसबीआई ने यहाँ पर अभी कितने अमाउंट के ग्रीन बॉन्ड्स को रेज किया, तो $250 मिलियन के यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स रेज किए गए, जो मैच्योर करेंगे 29 दिसंबर 2028 को, करेक्ट। तो ये $250 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स रहेंगे, और इनको BBB नेगेटिव रेटिंग मिली है थ्रू बाय S&P रेटिंग्स एंड फिच रेटिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ NARCL। तो NARCL के MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली? P संतोष को अपॉइंट किया गया है। ये किन को रिप्लेस करेंगे? ये नटराजन सुंदर को रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू MD एंड CEO ऑफ NARCL। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी जिनको MD एंड CEO अपॉइंट किया गया NIIFL का। तो NIIFL के जो नए MD एंड CEO बने हैं वो हैं संजीव अग्रवाल। राजीव धर को ये सक्सीव करेंगे, राइट। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली कमेंट्स द फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम फ्लैगशिप डीप वाटर एसेट वाटर प्रोजेक्ट इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफशोर इंडियाज ईस्ट कोस्ट। तो किस कंपनी के द्वारा? ONGC के द्वारा यहाँ पर फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया फ्रॉम सी वाटर प्रोजेक्ट इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफशोर इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट। नेक्स्ट आ जाता है फिर, नेम द इंडियन हु रिसेंटली नेम्ड इन द गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर सिंगिंग इन द मोस्ट लैंग्वेजेस। 140 लैंग्वेजेस में इन्होंने यहाँ पे अभी सिंगिंग की, और हम ये देख चुके हैं दुबई में कॉन्सर्ट के दौरान 140 लैंग्वेजेस में सिंग करने वाली और उनके साथ जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप कर दिया है वो है सुचेता। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी मंथ। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे लाया जा सके। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं, इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया किस साल को एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। आई रिपीट, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एंड ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 साल बताओ इंडियन आर्मी के द्वारा डिक्लेयर करे गए थे। अगर बात की जाए ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन तो ये रहेगा 2024। तो हमारा राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 2। पूछा जाए ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा था, तो वो था 2023, जिसको हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड हम जानते हैं कि इंडिया मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। हम चाहते हैं कि जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं हम उनको इंपोर्ट ना करके इंडिया में ही बनाएं, इंडिजीनियस कंटेंट से बनाएं। एंड आज की जनरेशन जैसे अगर हम देखें तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT डिवाइसेस, UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसमें आपके ड्रोन्स आ जाते हैं, राइट, इनका यूज़ किया जा रहा है, इनको इनकॉर्पोरेट करके, ताकि वेरियस सेक्टर्स में, डिफेंस सेक्टर्स में ही ना देखें तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी देखेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा हमें यूज़ देखने को मिलेगा ड्रोन्स का, ठीक है। फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए, वेरियस सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई। इसी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट संभव। प्रोजेक्ट संभव क्या है? संभव की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। आई रिपीट, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। साइबर डोमेन में एंगेज करने के लिए इंडियन आर्मी पर्सनल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए साइबर सिक्योरिटी में यह लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट संभव। नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया 2024 को एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एंड 2023 को ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए किनको CMD ऑफ द ईयर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है IREDA के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास, ठीक। फिर इसी के साथ साथ लीफ एरिक्सन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मून मिशन को।
बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट की बात की जाए तो वो बेंगलोर कर्नाटका में रहेगा, किया कैंप गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप मेडल टैली में टॉप किसने किया? हरियाणा ने टॉप किया, राइट। अंडर 19 एशिया कप 2023 किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। ठीक, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की किसने जीती? और ये पहली बार जीती है हरियाणा ने, विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ, अगर आपसे पूछा जाए सब जूनियर स्नूकर टाइटल, सब जूनियर स्नूकर टाइटल ये कौन किन्होंने जीता? वो है नताशा चेतन। और याद रखेंगे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा व्यक्ति इनमें से या कौन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद स्नूकर, तो वो है नताशा चेतन। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट बीएसआई सर्टिफाइड ISO 27001 पेट्रोकेमिकल फर्म, तो वो है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, राइट, HPL। ये वो पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जिनको ISO 27001 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया इन इंडिया। ये सर्टिफिकेशन इनको यूके बेस्ड सर्टिफाइड बॉडी BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दी गई एट ए सेरेमनी दैट वाज हेल्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और याद रखेंगे HPL का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, करेक्ट। एंड ये जो सर्टिफिकेशन है ये हाईलाइट करता है HPL's कमिटमेंट टू सिक्योर एंड रिलायबल डिजिटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है बिटवीन योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो ईजी हो सके, डाटा ईजिली एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंशियली और इंटीग्रिटी के साथ यहाँ पे शेयर किया जा सके। ठीक है, फिर BSI की अगर मैं बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? सुजैन मार्टिन, फाउंडेड बाय सर जॉन वॉल्फ बेरी, एस्टैब्लिश्ड इन 1901। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की बात की जाए तो CEO नवनीत नारायण, हेडक्वार्टर्स कोलकाता, वेस्ट बंगाल, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की एक रिपोर्ट ऑन जेंडर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन इंडिया? तो अभी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि जेंडर इक्वालिटी पे बात करती है। इनका मेन एम क्या रहेगा? बेसिकली जो लैंड पोर्ट्स है ना इंडिया में, उनको जेंडर फ्रेंडली बनाना। रीजन बीइंग, ताकि अभी हम देख रहे हैं वहां पे मैन तो काम करती हैं, वहां पे वीमेंस को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो ट्रेड सेक्टर एंड टूरिज्म सेक्टर में अपना योगदान दे सके, एंड इससे वहां पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो वीमेंस को भी प्रोवाइड कराई जा सके। आने वाले 3 साल में इन लैंड पोर्ट्स को यहाँ पे जेंडर फ्रेंडली बनाने की बात की गई बाय LPAI, एंड इसी के लिए इन्होंने यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज की थी जो कि है एनजेंडरिंग लैंड पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, मार्क करेंगे, ट्रेड एंड टूरिज्म सेक्टर में वीमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए एट लैंड पोर्ट्स, ये यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें ये बताया गया LPAI के द्वारा। बेसिकली एम क्या है? इन पोर्ट्स को, लैंड पोर्ट्स को जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से बनाना, ताकि वीमेंस भी यहाँ पे जॉब्स के लिए इनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है, चलिए फिर इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ माइनॉरिटी राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 दिसंबर को। 18 को ही इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। 21 दिसंबर को पहली बार ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। फिर 22 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, S रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ ग्रीन टैक्स इंपोज करा जाएगा एयर पैसेंजर्स पर 2025 से। कौन सी कंट्री इंपोज करेगी? डेनमार्क करेगी। ठीक है, कौन सी कंट्री? डेनमार्क। फिर रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बन के कौन आएंगे? वो है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू इंप्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना? सबसे पहले तो PM विश्वकर्मा योजना, ये PM विश्वकर्मा योजना है क्या? याद रखेंगे PM विश्वकर्मा योजना थी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है
मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड एमएसएमईज को ग्रो करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं जो आर्टिशंस बनाएंगे उनको बेटर रीच प्रोवाइड कराने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। करेक्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी जिन्होंने इंप्लीमेंट किया पीएम विश्वकर्मा योजना, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ना, सेंट्रल स्कीम है, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सितंबर 2023 में। एम रहेगा टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड रीच ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब मार्केट करना उन प्रोडक्ट्स की जो कि आपके आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पीपल बनाते हैं। जो टैगलाइन रहेगी ऑफ द स्कीम वो क्या है, सम्मान समर्थ्य समृद्धि, ये आपकी टैगलाइन रहेगी स्कीम की। एंड जो बेनिफिशियरी है, एंड शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये आपके जो बेनिफिशियरी है कम से कम 18 साल के होने चाहिए फॉर दिस बेनिफिट। फिर यहीं पे याद रखेंगे यहाँ पे लोन भी इजी लोन मिल जाएगा अप टू 3 लाख रुपीज इन आर्टिशंस को एट जस्ट अ 5% इंटरेस्ट रेट, 5% इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन मिल जाएगा। करेक्ट, और यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी 5 से 7 दिन, फिर 15 से 30 दिन, ऐसी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। और इन ट्रेनिंग्स को 500 रुपये पर दिन के हिसाब से भी मिलेंगे, एज वेल एज मॉडर्न टूल किट्स भी प्रोवाइड की जाएगी वर्थ 15,000 रुपीज। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू कंट्रीज हैव जॉइंड ब्रिक्स इन 2024, तो कितनी कंट्रीज ने अभी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। ब्रिक्स क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। करेक्ट, तो 1 जनवरी 2024 से अभी ब्रिक्स में कितने नए मेंबर आ गए हैं, तो 5 नए मेंबर आ गए हैं। यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। इवन अभी एक न्यूज़ ये थी कुछ टाइम पहले कि जो ये मेंबर्स ऐड हुए हैं, इन मेंबर के ऐड होने के बाद बहुत चांस है कि ब्रिक्स अपनी खुद की एक करेंसी लॉन्च कर सकता है जो कि बैक्ड होगी बाय गोल्ड। गोल्ड से ये करेंसी बैक्ड होगी एंड कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है अभी, लेकिन देयर इज अ हाई चांस कि ये फ्यूचर में हो सकता है। करेक्ट, तो याद रखेंगे 15वीं ब्रिक्स समिट हुई थी, ये कहां पे हुई थी, इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी, तो साउथ अफ्रीका के पास थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर ये तो 15वीं थी, 16वीं ब्रिक्स समिट कहां पर होगी, तो याद रखेंगे 16वीं ब्रिक्स समिट रशिया में होगी। नेक्स्ट है लियो, अलॉन्ग विद विच पेमेंट बैंक इन्होंने लॉन्च किया मास्टर कार्ड पावर्ड लियो 1 कार्ड को। लियो क्या है, लियो आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि विच पेमेंट बैंक, तो लियो ने पार्टनर किया एनएसडीएल पेमेंट बैंक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इंडियन क्रिकेटर वन प्यूबिटी स्पोर्ट मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो इन्होंने लायनल मेसी को भी लिस्ट में था लेकिन उनको भी पीछे छोड़ दिया है, तो ये है विराट कोहली, और इन्होंने प्यूबिटी स्पोर्ट्स मैन एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड को जीत लिया है। करेक्ट, अगर ये तो था मेंस की कैटेगरी में। अगर वीमेंस का पूछा जाए तो वीमेंस का किन्होंने जीता, वो है आइताना बॉनमाती। आइताना बॉनमाती ये एक फुटबॉलर है, स्पेनिश फुटबॉलर है, और ये प्यूबिटी स्पोर्ट्स वीमेन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता। आप यहाँ पे देख सकते हैं लायनल मेसी को भी पीछे छोड़ दिया विराट कोहली ने इन दिस, एंड यहाँ पर स्पेनिश फुटबॉलर आइताना बॉनमाती इन्होंने प्यूबिटी फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड को जीत लिया है। विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 2017 में, एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2018 में इनको सम्मानित किया गया था। अर्जुन अवार्ड से इनको 2013 में सम्मानित किया गया था। सबसे पहले बात कर रहे हैं विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ सिंगल विंडो पोर्टल फॉर मेडिकल डिवाइस मैनेजमेंट, तो एक सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां पे हम जो भी मेडिकल डिवाइस को प्रोक्योर करेंगे उनको टेस्ट करना, क्या वो ठीक है या नहीं, क्या हमारी जो मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं उससे वो बेटर हैं या नहीं, क्या जो हम जिस प्राइस पे उनको प्रोक्योर कर रहे हैं क्या वो ठीक रहेंगे या नहीं, क्या उससे हमारी जनता को बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक अभी सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया गया। जो सिंगल विंडो पोर्टल रहेगा वो है NSWS। ये क्या है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल। करेक्ट, एंड इससे जो भी हम मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसका ध्यान रखा जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने ये लॉन्च किया, तो हमारे इंडिया ने लॉन्च किया। और ये बनाया किसके द्वारा गया है, डेवलप एंड डिजाइंड बाय, ये आ जाए तो डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो मार्क करके चलेंगे, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इन्वेस्ट इंडिया। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपसे फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चन पूछूं, जैसे ज़रा बताओ अभी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसने जीता, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का किस स्टेट के द्वारा जीता गया, कर्नाटका के द्वारा जीता गया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ तलहई
एंड नासिर, ये दो अभी मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, किस कंट्री की हैं? ये ईरान की हैं। फतेह 2 ये न्यूज़ में थी अभी, कहाँ की रहेगी? पाकिस्तान की। नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन ये एक एक्सरसाइज है, पहला एडिशन हुआ था इस एक्सरसाइज का, इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो इंडिया एंड यूएई के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है आपकी, डेजर्ट साइक्लोन। करेक्ट, पहला एडिशन रहेगा इसका। लोकेशन क्या रहेगी इस एक्सरसाइज की? राजस्थान। इंपॉर्टेंट, राजस्थान में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। करेक्ट, 2 वीक लॉन्ग ये एक्सरसाइज रहेगी, 2 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक ये एक्सरसाइज चलेगी। तो ये है आपकी इंडिया और यूएई के बीच में। इंडिया और यूएई के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जो कि आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है, वो है डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल, ये डेजर्ट ईगल का पहला एडिशन कब हुआ था? 2008 में हमें देखने को मिला था। करेक्ट, चलिए, डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में हुई, इंडिया और यूएई के बीच में हुई, और इसका ये पहला एडिशन था। नेक्स्ट अगर आपसे और क्वेश्चन पूछूं जरा बताओ, अभी रिसेंटली वो पहली वीमेन, फर्स्ट वीमेन जो कि डायरेक्टर जनरल बनी है सीआईएसएफ की, क्या नाम रहेगा उनका? नीना सिंह। ठीक है, देन एलआईसी के चीफ रिस्क ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है एस सुंदर कृष्णन। इसी के साथ साथ बताओ, अभी रिसेंटली पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? कोटक महिंद्रा बैंक के। तो कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन सीएस राजन। फिर बिस्लेरी की ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट की गई हैं? दीपिका पादुकोण। फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए इंडिया में कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कार्तिक आर्यन। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी रिलीज किया गया, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, और इसमें इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग पूछी गई है, कितनी रहेगी? तो 80 पोजीशन पे आ जाता है इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग। फिर इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इंडिया को वीजा फ्री एंट्री कितनी कंट्रीज में अभी? तो 62 कंट्रीज में इंडियंस वीजा फ्री जा सकते हैं, राइट, और रैंक रहेगी 80। वहीं पर अगर पूछा जाए 2023 में इंडिया की क्या रैंकिंग थी, तो 2023 में इंडिया की पोजीशन थी 83rd, और 58 कंट्रीज को यहाँ पे वीजा फ्री एंट्री मिलती थी। और अब 2024 में अगर हम देखें तो 62 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री और 80 रैंक रहेगी, मतलब इंप्रूव हुई है। टॉप पोजीशन पे 6 कंट्रीज आ जाती हैं, कौन कौन सी हैं 6 कंट्रीज? वो ये हैं आपकी फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। लोएस्ट पोजीशन पे या फिर हम बोले वीकेस्ट पासपोर्ट किस कंट्री का रहेगा ग्लोबली? वो है अफगानिस्तान का, 104th रैंक पे आता है ये, और 28 नेशंस को यहाँ पे सिर्फ एक्सेस है वीजा फ्री जाने का इनके पास। हेनलैंड पार्टनर्स की बात करें तो डॉक्टर ज़ुरेग स्टेफन यहाँ के सीईओ रहेंगे, हेडक्वार्टर लंदन यूके, एंड 1997 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन MSCI EM इंडेक्स? MSCI क्या है? मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक क्या पूछी गई, क्या रहेगी? तो इंडिया की रैंक आ जाती है सेकंड। फर्स्ट पोजीशन किसकी आती है? वो है चाइना की, राइट। तो याद रखेंगे यहाँ पर इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। और ये MSCI EM इंडेक्स बेसिकली होता क्या है? ये आपका जो इन्वेस्टेबल बेंचमार्क होता है जो इंडेक्स का ऑफ द इक्विटी मार्केट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। यहाँ पे 24 एमर्जिंग कंट्रीज का यहाँ पे एक मिड कैप एंड लार्ज कैप सेगमेंट रहता है, उनको कैप्चर किया जाता है, करेक्ट। तो सेकेंड रैंक रहेगी इंडिया की इन दिस MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, फर्स्ट पोजिशन पे आ जाता है चाइना, ठीक। फिर थर्ड पोजीशन पे पूछा जाए तो ताइवान थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पर साउथ कोरिया, एंड फिफ्थ पोजीशन पे आ जाता है आपका ब्राजील, ठीक है। अगर इंडिया की पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया का क्या आपका इंडेक्स रहेगा? तो इंडिया का था 17.1%, और ये एक्सपेक्टेड है 2024 के स्टार्टिंग में कि ये 20 टच कर जाएगा। अगर मैं बात करूं चाइना का कितना इंडेक्स है, वो है 26.6। चलिए, इवन हम देख रहे हैं इंडिया में पिछले 11 सालों में जो इंटरनेशनल मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है, फॉरेन कंट्रीज से जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, और हाईएस्ट इन्फ्लोज हमें देखने को मिले हैं इंडिया में इन द लास्ट 7 ईयर्स। इवन हम देखें तो इनवर्ड रेमिटेंस के हिसाब से भी इंडिया में वो एक लौती कंट्री है जिन्होंने $100 बिलियन का मार्क क्रैक किया, और इस बार हम $100 बिलियन का, हमने $112 बिलियन का यहाँ पे इनवर्ड रेमिटेंस देखने को मिला है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवेल्ड इंडियन रेलवे फ्राइट एक्टिविटी इंडेक्स।
IRFA इंडेक्स अभी लॉन्च करने वाली दो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं? जर्मनी की फ्लोरिडा यूएसए बेस्ड डन एंड ब्रैडस्ट्रीट एंड जुपिटर वैगन्स, करेक्ट। इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर अभी IRFA इंडेक्स को लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन। ये 15वां एडिशन था, प्रगति मैदान में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ, 12 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में हुआ था 2023 में, ठीक है। उसके दौरान ये IRFA इंडेक्स को लॉन्च किया गया, करेक्ट। और ये IRFA इंडेक्स बेसिकली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूल है जो कि इंडियन रेलवे फ्लाइट एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसमें जो भी हम बेटर कर सकते हैं उस डाटा के एनालिसिस करके वहां पे हमें ऑप्शंस प्रोवाइड कराएगा। फिर जुपिटर वैगन्स की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? मिस्टर विवेक लोहिया, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल, और इसको 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की बात करें तो MD एंड CEO रहेंगे अविनाश गुप्ता, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र, एंड इसने अपने ऑपरेशंस 1995 में स्टार्ट करे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री साइंड अ लेटर ऑफ अरेंजमेंट एंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये दो अभी साइन किए गए किस कंट्री के साथ, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो देखेंगे, अगर हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ये पहले तो ये देख लेते हैं किस कंट्री के साथ। तो इंडिया ने यूके के साथ यहां पर ये अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। अगर बात करूं मैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, ये बेसिकली इंडिया और यूके के बीच में साइन हुआ ताकि इंटरनेशनल कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके, कैडेट्स को एक्सचेंज कराया जा सके एक दूसरी कंट्रीज के बीच में। फिर लेटर ऑफ अरेंजमेंट जो साइन हुआ है इंडिया की DRDO एंड यूके की DSTL, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, इन दोनों के बीच में ये एक लेटर ऑफ अरेंजमेंट साइन हुआ ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके इन डिफेंस सेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली इंडिया किस IIT ने एक नया कैंपस सेटअप करने की बात की इन श्रीलंका के कैंडी एरिया में एक नया IIT सेटअप करेंगे जो कि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंस्टीट्यूशन होगा। कौन सा IIT सेटअप करेगा? तो ये है IIT मद्रास, चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड IIT मद्रास एक नया टेक कैंपस सेटअप करेंगे कैंडी श्रीलंका में, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। और यहाँ से जो भी UGC यहाँ पे गाइडलाइंस देंगी, जो भी उनका करिकुलम होगा, जो भी यहाँ पर कोर्स बनेगा, वो सारा UGC के द्वारा अप्रूव करा जाएगा। नेक्स्ट अगर आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहां पर हुआ? अयोध्या में हुआ। फिर अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या रहेगा? वो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली किस कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया है ब्रिक्स की मेंबरशिप को? तो अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया ब्रिक्स की मेंबरशिप को। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास रहेगी? रशिया के पास रहेगी, राइट। फिर अभी रिसेंटली इंडिया से कौन रिप्रेजेंट करेंगे युगांडा नाम समिट में? कौन रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को? वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए किनको सम्मानित किया गया था MS स्वामीनाथन अवार्ड से, तो प्रोफेसर BR कंबोज को यहां पे सम्मानित किया गया विद MS स्वामीनाथन अवार्ड। फिर अभी रिसेंटली डेजर्ट साइक्लोन, ये एक एक्सरसाइज हुई थी, राजस्थान में हुई, किन दो कंट्रीज के बीच में हुई? तो इंडिया एंड UAE के बीच में डेजर्ट साइक्लोन देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, SBI's proposed dollar denominated bonds gets which rating from S&P and Fitch? S&P and Fitch रेटिंग्स, इन दोनों के द्वारा अभी SBI के प्रपोज्ड डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को कौन सी रेटिंग मिली? तो BBB नेगेटिव रेटिंग यहां पर हमें देखने को मिलती है फॉर द SBI's प्रपोज्ड डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड, जो कि S&P एंड फिच के द्वारा इनको कौन सी रेटिंग दी गई? BBB नेगेटिव की यहां पर रेटिंग। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो बढ़ जाएगा। अगर हम देखें 2023 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो कितना था? 5.1% का, और यही बढ़कर 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो जाएगा? 5.2% का यहाँ पर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलेगा इन 2024, और 2023 में ये कितना है? 5.1% का, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एक और यहाँ पे डाटा बताया गया कि 2024 में 2 मिलियन लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड रहेंगे, मतलब 20 लाख लोग इंडिविजुअल्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब जो रेट है मतलब जो ये 0.1% का गैप आया ना 5.1 से 5.2 के बीच में, ये कितना है? 2 मिलियन लोग यहाँ पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते हुए देखेंगे एट द ग्लोबल लेवल इन 2024।
राइट। रीजन क्या है? एक तो हम देख रहे हैं ग्लोबली जो अनसस्टेनेबिलिटी चल रही है, इन्वेस्टमेंट्स कम होती जा रही हैं, जो कर्जा है यूएस का वो इतना ज्यादा बढ़ गया, प्रिंटिंग बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, राइट। कंज्यूमर जो बिजनेस है वो कम होते जा रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो इसकी मदद से जो काफी सारी जॉब रोल्स हैं वो खत्म होती जा रही हैं। इवन गूगल ने भी, हमने देखा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इनके द्वारा काफी सारे ले ऑफ्स भी किए जा रहे हैं अभी रिसेंटली। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है इंडियाज जीडीपी टू सरपास $4 ट्रिलियन इन 2024-25 एज पर पीएचडी सीसीआई रिपोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि जो इंडिया की जीडीपी है ना, ये क्रॉस कर जाएगी 4 ट्रिलियन के मार्क को इन 2024-25, और यही 5 ट्रिलियन के मार्क को सरपास कर जाएगी इन 26-27। ठीक है, 4 ट्रिलियन 24-25 में और 5 ट्रिलियन इन 25-26। इट ऑल्सो प्रोजेक्टेड दैट इंडिया जीडीपी टू रीच $7 ट्रिलियन बाय 2030 एज इंडिया इज कमिटेड टू अटेनिंग द स्टेटस ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047 अंडर विकसित भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आईपीपीबी एंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया टू ऑफर फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज इन द रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के रूरल एरियाज में सर्विसेज, जैसे लोगों को हेल्प करना अपने बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, फिर उनके पेंशन प्लान के लिए, फिर कहाँ पर उनको लॉन्ग टर्म सेविंग करनी चाहिए, कहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए, कहाँ पे लोन्स लेके वो अपने फ्यूचर को और सिक्योर कर सकते हैं किसी इन्वेस्टमेंट करके किसी प्रॉपर्टी में। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए आईपीपीबी ने अभी किनके साथ टाई अप किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो भी एक्टिविटीज हैं उनके अंडर यहाँ पे ये हेल्प करेंगे आईपीपीबी के साथ मिलके, ताकि रूरल एरियाज में ये सारी सर्विसेज पहुंचाई जा सकें, और इसी के लिए इनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। यहीं पर अगर हम देखें आईपीपीबी की बात, तो सीईओ कौन रहेंगे? वेंकटरमन जयंती, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 2018 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो सीईओ अरुण मिश्रा, हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान, एंड 1966 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। इसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस देखें, जैसे अभी रिसेंटली एक्सपोसेट, ये PSLV C-58 रॉकेट की मदद से एक्सपोसेट सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ जेमिनी की अगर मैं बात करूं, जेमिनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। फिर इसी के साथ साथ किन्होंने अभी अंडर 19 का स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप को जीत लिया है अंडर 19 कैटेगरी में? वो है अनाहत, राइट। इन्होंने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश टाइटल को जीत लिया फॉर अंडर 19। इसी के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं ग्लोबल फैमिली डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 जनवरी को। वर्ल्ड डे ऑफ पीस कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 जनवरी को। कॉपीराइट लॉ डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 जनवरी को। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज विल इंक्लूड इंडियाज FAR बॉन्ड्स इनटू देयर इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स फ्रॉम डैश। तो अभी रिसेंटली ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज लिमिटेड ये इंक्लूड करेंगे इंडिया के FAR, जो कि होता है फुल्ली असेसिबल रूट बॉन्ड्स को, इनटू देयर इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स फ्रॉम सितंबर 2024। ठीक है, एंड एज पर्पज द प्रपोजल इंडियन गवर्नमेंट वोल्स विल बी फेज्ड इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग स्पेनिंग ओवर 5 मंथ्स। मतलब फेज्ड वाइज ये यहाँ पर इनकी इंप्लीमेंटेशन की जाएंगी ओवर 5 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2024, और जनवरी 2025 तक जाके ये सारे यहाँ पर लिस्ट किए जाएंगे। एंड इवन सितंबर 2023 में यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स विल बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल इंडेक्स सूट फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे जब ये स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद इंडियन रुपी विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट currency component following the Chinese renminbi and South Korean won within the Bloomberg Emerging Market Local Currency Index। किस टाइगर रिजर्व या कौन सा टाइगर रिजर्व बिकेम इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क? ये डार्क स्काई पार्क क्या है? बेसिकली जब रात को नाइट पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा, नाइट पॉल्यूशन नहीं, लाइट पॉल्यूशन, राइट। जब लाइट पॉल्यूशन ना के बराबर होता है तो जो हमारा स्काई है ना, उसमें जो स्टार्स हैं वो बहुत अच्छे से दिखते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं, करेक्ट। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये पहला डार्क स्काई पार्क बना इंडिया का, जो कि है पेंच टाइगर रिजर्व। कहां पर रहेगा पेंच टाइगर रिजर्व? ये महाराष्ट्र में है। इंडिया का पहला है, इंडियाज फर्स्ट, लेकिन एशिया का ये 5th डार्क स्काई पार्क रहेगा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। कहां पर है पेंच टाइगर रिजर्व? ये आपका महाराष्ट्र में रहेगा। मूविंग ऑन,
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक पैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू प्रोवाइड लोन फॉर क्रेडिट फैसिलिटी टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं एंड इसमें भी जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको हेल्प करने के लिए, इनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि ये अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, राइट। जब भी इनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी, तो यही यहाँ पे इनको हेल्प किया जा सके। इसी के लिए किस बैंक ने टाई अप किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ? वो है एसबीआई। इवन एसबीआई ने एक स्वयं सिद्धा नाम का एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेवलप किया स्पेसिफिकली फॉर वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट। यहीं पर इनको टूल किट भी प्रोवाइड की जाएगी, और ये जो टूल किट होगी बेसिकली क्या है, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहती हैं उनको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे आप फाइनेंशियली आप अपने गेम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है एज अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, याद रखेंगे। तो एसबीआई की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे? दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एंड 1955 में इसको एस्टैब्लिश करा गया। मूविंग ऑन, इसके अलावा अगर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली 67th नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुए। देन फिर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सेटअप की जा रही है, किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ बताओ किन्होंने लीड्स रिपोर्ट को रिलीज किया? ये एक लीड्स सर्वे था, तो ये रिलीज किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। देन इंडिया को किस ऑर्गेनाइजेशन ने $250 मिलियन का लोन दिया ताकि इंडिया का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट की जा सके? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यहां पर टाई अप करा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ, रिलायंस, याद रखेंगे, रिलायंस बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर रही, राइट। मोतीलाल ओसवाल स्टडी के हिसाब से रिलायंस बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर रही एज पर मोतीलाल ओसवाल स्टडी रिपोर्ट। देन अटल हेल्थ फेयर हुआ था। अटल हेल्थ फेयर ये लखनऊ में हुआ। इनॉग्रेट किसके द्वारा करा गया? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन बैंक ने अभी कोलैबोरेट किया 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि इंडियन बैंक वन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन है? एफपीएल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, वीजा एंड एनपीसीआई। तो इन तीनों के साथ मिलके इंडियन बैंक वन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। ये वीजा एंड रुपए दोनों से पावर्ड रहेगा। अगर इंडियन बैंक की मैं बात करूं, एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? शांति लाल जैन। चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर रहेगा। 1907 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक, मूविंग ऑन, फिर आते हैं किस बैंक ने भी लॉन्च किया एक ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट स्कीम टू सपोर्ट द ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम। हम जानते हैं हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं एंड ग्लोबली बाय बॉन्ड्स या फिर जैसे अभी हम देख रहे हैं फिक्स डिपॉजिट, इनके थ्रू पैसा रेज किया जा रहा है ताकि जो क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वर्क किया जा सके, ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जा सके, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बेसिकली, राइट। तो किस बैंक ने अभी ये ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एफडी स्कीम को लॉन्च किया? वो है एसबीआई ने। 3 टर्म्स के लिए यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, 1111 दिन, 1777 दिन, 2222 दिन। इन 3 टर्म्स के लिए यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, ये आपका एक तरीके का जो स्कीम है जो कि है बेसिकली किसके लिए? ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट स्कीम, जो कि एसबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं 3 टर्म्स के लिए और एसबीआई के द्वारा ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एफडी स्कीम लॉन्च की गई ताकि टू सपोर्ट द ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, फिर नेक्स्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन को अभी आरबीआई का अप्रूवल मिला टू सेटअप अ होली ओन फाइनेंस कंपनी इन गुजरात? तो वो रहेगी पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक महारत्ना सीपीएससी है, इनको अभी आरबीआई का अप्रूवल मिला है ताकि एक अपनी होली ओन फाइनेंस कंपनी ये इस्टेब्लिश कर सके एट द आईएफएससी इन जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, आईएफएससी जिफ्ट गांधीनगर गुजरात में अपना खुद की एक होली ओन फाइनेंस कंपनी सेटअप करने का अप्रूवल मिला पीएफसी को, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। इससे इंडिया के पावर सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.